it's not like any other travel show, which is usually quite boring, is what I feel. What we have done with Trippy Travel is that for every destination that we are going to, we are going to have celebrity guests coming along with us, things that nobody else has done, show places to people that nobody else has done, and it's going to be more for fun for the show. So yeah, Dawn Cinema, I think, is going to be doing a lot of different kind of entertainment. They're going to have a lot of international movies, international shows, and they're going all over the world. Again, I'd like to congratulate Mr. Mahmood Ali and Mr. Mohammad Fasil for coming up with such an amazing idea. Thank you very much. You recently shot Tribute Traveler and of course you see the sneak peek of it. Tell us, the kind of places that you want to explore during, which is of course going to be very unique and one of its kind. Tell us a little bit more about Tribute Traveler. Okay, so yeah, like I said earlier, Tribute Traveler is going to be a very wild and wacky show. We are doing a lot of stuff that we want to go to where no one else has gone before. We're going to go to places that a lot of people don't know about. Like the first few episodes, we've shot in a place called Malana. It's close to Kasol. It's a place where no cars, no motoring, there's no motoring vehicle. So we had to trek for 2 hours. And I taken actor Shweta Kanduri with me for that. So the show is going to be very different from most of the travel shows because, like I said, they're going to show a lot of places and things which people don't know about. And hopefully, after watching the show, I think people are going to go to those destinations. So we've just started with India right now. Slowly and steadily, we're going to move off to the rest of the world. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ पोस्टर देख रहा हूँ आपकी बैग आपकी टी शर्ट सब कुछ थोड़ा हॉरर काइंड ऑफ है इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर कुछ मिस्ट्री इसके पीछे See, as a filmmaker, I've always been drawn to thrillers and horrors. मुझे यार ये skeleton बहुत अच्छा लगता है. Even my T-shirt is a skeleton. I just find it very wacky, so this is the way I dress. It's not like I've done this just for the show today or something. I usually dress up. सर डॉन सिनेमा के अंतर्गत कोई हॉरर फिल्म जल्दी आ सकती है इस तरीके से देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी, yes, we are working on a new web series now. Hopefully, we're going to be shooting it in Maldives. It is a horror web series, and soon we will make an announcement. थैंक यू सो मच थैंक यू Very long time, and we know his love and passion for traveling, and now finally he's getting something what he loves and we all of us love, so we just want to wish him all the best. Yeah, Trippy Travelers, जब नाम सुन करी, this has been our group name for years and years to be connected between us friends because we've been traveling, हमने बहुत travel किया है around the world और एक traveling का जो experience अजीज़ के साथ तो मैंने as a personal friend किया और हम सब ने किया है बहुत amazing रहा है and I'm glad कि Dawn Cinema के through experience लोगों तक पहुँचाएगा and I'm sure you all are going to love it क्योंकि हर एक ट्रिप में और हर एक ट्रैवलिंग की एक अपनी कहानी होती है और वो इस शो के थ्रू आप सब तक पहुंचेगी। मैम मैं आपसे जानना चाहूँ थोड़ी देर पहले सर ने एक अनाउंस किया था कि हॉरर वेब शो करके जल्दी लेकर आए क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे वो आपको अजीज़ को ही पूछना पड़ेगा मैं हमेशा उसको पूछती तो मुझे लेता क्यों नहीं ऑलवेज ही हैज एक्सक्यूज आई थिंक यू शुड आस्क हिम मुझे लगता है कि एज एन ट्रैवलर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को भी उस जगह पे देखने का क्योंकि मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ बीन टू एवरेस्ट ऑल्सो और अभी आने वाले कुछ फ्यूचर के लिए उसके प्लान्स हैं मेरे साथ भी तो आई एम हैप्पी विद दैट कि इसने कुछ ऐसा शुरू किया है और आई नो कि उसका ट्रैवलिंग को लेके शूट को लेके जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल है और अब मैं देखना चाहता हूँ उसने जो शूट किया है जिस तरीके से उसने वो जो शो पूरा तैयार किया है ट्रैवलिंग पे वो कैसा होगा आई एम श्योर अच्छा ही होगा हमें देख के बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू ऑल द बेस्ट सर गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशंस थैंक यू फिर से शुरुआत हो रही जैसे शाहरुख सर की डॉन 1 क्या फिर से डॉन 2 आने वाली है जो रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं वैसे मैं आप दोनों जानते हो इस बार नई तैयारी के साथ क्या कुछ नया होगा क्या नए विजुअल्स होगा क्या कुछ नया देखने मिलेगा जब मैंने 2019 में डॉन सिनेमा शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेस मिलेंगी जितना लॉकडाउन के वजह से वी आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 5 इन द वर्ल्ड और बहुत बड़ी सक्सेस मिली तो हमने क्योंकि हम बिना तैयारी के आए थे सिर्फ ऑन एंड्रॉयड पे थे तो इस टाइम हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं iOS पे है हम लोग जियो के साथ में हमारा टाइप हुआ है अमेज़ॉन प्राइम के साथ में टाइप हुआ है और 18 डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड चाइना ताइवान रशिया ईरान अमेरिका कनाडा UK यूरोप
ऐसे कई इंटरनेशनल OTT के साथ में हम लोग टाई अप करके इस बार तैयारी के साथ में आए। उस बार हम लोग आए थे KG के बच्चे की तरह आए थे कि हमें पता नहीं था कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद में कहाँ जाएंगे, क्या डिग्री लेंगे, लेकिन इस टाइम पे हम लोग पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में तैयारी के साथ में कि व्हाट वी वांट। वैसे आपसे जानना चाहेंगे डॉन सिनेमास का जो शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड यू ऑल कोलैबोरेट टुगेदर? Basically, I'm also in film production distribution from 25 years. Then Mahmood was doing a very good job, and now eventually everything is OTT. So that's why I've joined hands with him, and we are going to be to the part of the other OTT channels. सर, जिस तरीके से आपने बात में मेंशन किया कोविड को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोविड के बाद हिंदी सिनेमा कितना बदल गया? कम्प्लीटली एक डिफरेंस आया, क्योंकि मैं एज एन प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर काम किया हूँ पिछले 20-22 साल से। तो मुझे लगता था कि कोविड के बाद में थिएटर शुरू नहीं होंगे, थिएटर का टाइम नहीं आएगा, लेकिन थिएटर एक चैलेंज बन गया है OTT वालों के साथ में। आज अगर आपको फिल्म बनानी है तो प्रोड्यूसर को पहले दिन से फैसला करना पड़ता है व्हाट दे वांट, OTT और थिएटर, क्योंकि बिग डिफरेंसेस आ गए हैं। एक OTT की ऑडियंस अपनी आ गई है जिसे बहुत अच्छा नया कंटेंट देखने मिल रहा है, और थिएटर वालों की ऑडियंस के लिए जो रेगुलर फिल्में हैं वो बनना बंद हो जाएंगी अभी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बात करूँ सर नाम के डॉन की, मैं आप दोनों जन कहाँ से डॉन नाम की खोजी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन और आपने पकड़ लिया और आज बैनर भी ला दिया। एक्चुअली डॉन का मतलब है D फॉर डिजिटल, O फॉर ऑनलाइन, N फॉर नेटवर्क। विदाउट दिस 3 वर्ड OTT इज़ नॉट कम्प्लीटेड। सो इट इज़ अ बिहाइंड दैट डॉन। जब मैं नाम रख रहा था मुझे कई चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि क्या रखें, लेकिन जब मुझे डॉन आया, क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि लोग भूलेंगे नहीं। मैं आपसे जानना चाहेंगे इंसान जिला गाजियाबाद है, सो मेनी फिल्म्स सच बिग पार्ट ऑफ OTT का जब आप विजन आप देखते हैं कैसे अलग देखते हैं, ऑल्सो देयर आर प्लान्स ऑफ म्यूजिक जर्नी ऑल्सो, प्लीज टेल अस अबाउट इट। Because this OTT platform, we have now more than 5,000 hours of content we have at present, and we'll be acquiring, we'll be making in-house as well, and eventually we have another project coming up, Dawn Music Cafe, with the app. That's something unique. एक्चुअली डॉन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डॉन म्यूज़िक कैफ़े, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे AI इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एनी पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। जो AI जिस तरीके से आ रहा है, AI के आने से जितने बड़े बिजनेसमैन थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो नंबर 10, नंबर 15, जितने आप टॉप 10 के बिजनेसमैन अगर आज के वक्त में देखेंगे, इंडिया में बिलियनर्स जो पहले थे वो सिर्फ 12 या 15 थे, अब 54 हो गए हैं। वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ AI। तो AI के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, चैलेंजेस आ रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, सिंगरों के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं म्यूज़िक का, जिसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एनी न्यू सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, और जो इवेंट्स होते हैं वो लाइव इवेंट, आप चाहे रशिया का इवेंट देखना चाहे, आप चाहे म्यूज़िक सुनना चाहे, किसी भी FM का सुनना चाहे, इमीडिएटली आपको एक सिंगल टैप पे मिल जाएगा। टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, और क्या बच्चों का भी कुछ है, बच्चों के लिए भी? डेफिनेटली जब मैं आई वॉज द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ OTT, जब मेरे साथ में कपिल देव पार्टनर थे, तो मैंने उस वक्त में कहा था कि मैं न्यूडिटी नहीं लेकर आऊँगा। मेरा OTT फैमिली OTT होगा, बच्चे देखेंगे, जवान देखेंगे, बूढ़े देखेंगे। तो मैं आज भी उस पर स्टिक हूँ। मैंने ऐसे कोई कंटेंट ना बना रहा हूँ, ना बनाना चाहता हूँ जिसके वजह से मेरे बच्चे वाली ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस हाथ से जाए। और पूरी दुनिया हंसती थी मुझ पर कि फैमिली ऑडियंस है ही नहीं, OTT की ऑडियंस। जब सीक्रेट गेम्स आया थे, सीक्रेट वो आया था, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म पे नई चीज़ आए थे, गाली गलौज के साथ में या न्यूडिटी के साथ में, एक चैलेंज बन गया था OTT के लिए। लेकिन डॉन ने प्रूव करके बताया कि नहीं, हम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने हिसाब से कंटेंट बनाएंगे और लोग उसको देखेंगे। क्योंकि ऑडियंस आपसे कभी नहीं कहती है कि मुझे ये देखना है। ऑडियंस बोलती है ये अच्छा कंटेंट है, चाहे फैमिली वाला चाहे न्यूडिटी वाला, वो कहती मुझे ये देखना, ये नहीं देखना। सर जिस तरीके से आपने ऐप की बात की, ऐप मेंशन किया, मैं जाना चाहूँगा जो ऐप रहेगा वो पेड रहेगा, अनपेड रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, फ्रॉम डे 1 जब हम लोग डॉन ओरिजिनल लेकर आए थे, पहली बार लेकर आए थे, तो पहले डे 1 से हम लोगों ने पेड रखा था। दिस टाइम 3 मंथ के लिए हमने लेकर आए, क्योंकि हमारे टाइप जिन लोगों के साथ हुए हैं, जियो के साथ में या और इसके अमेजोन के साथ में, तो दे सेट के 3 मंथ वी आर गोइंग टू फ्री, आफ्टर 3 मंथ डेफिनेटली वी विल चार्ज। सर लास्ट में आपसे बस जानना चाहूँगा, क्या लगता है डॉन सिनेमा में रियलिटी शोज की तरफ भी ध्यान जाएगा? Yes, we are doing. बिग बॉस का फिलहाल ट्रेंडिंग पे कर रहा है,
काफी मिलियंस फॉलोअर्स उनके बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डॉन सिनेमा भी कोई रियलिटी शो की तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स अगर आप डॉन ओरिजिनल की जब हम 2019 में आए थे तो उसका जो उस रथ को खींचने वाला घोड़ा जो था वो टॉकर हाउस था, और टॉकर हाउस हमने बिग बॉस के लिए चैलेंज लेकर आए थे। जितनी चीज़ें हमने उस वक्त में टॉकर हाउस के साथ में लेकर आ रहे थे, बिग बॉस हमको फॉलो कर रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था टॉकर हाउस इज अ चैलेंज फॉर बिग बॉस। तो वो एक हमने हमारा टॉकर हाउस वो था जो इन्फ्लुएंसर्स को, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को हम लेकर आ रहे थे एक रियलिटी शो में, और इतना ज़्यादा वायरल हुआ था वो कि एवरी वन वॉन्ट्स टू वर्क विथ मी। इवन मुनव्वर फारूकी का मुझे मैसेज आया था, कैन आई। तो डेफिनेटली ये ऐसा टॉकर हाउस रियलिटी शो है जो मुझे लगता है कि इट विल वर्क। किसी के अलग होगा, बाकी से क्या अलग होगा, और क्या कमर्शियली कितना वायबल होगा बाकी प्लेटफॉर्म से? बिकॉज काफ़ी कम्पिटिटिव है प्लेटफॉर्म ओटीटी के और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में वो दे रहे हैं। जी तो आपका क्या नाम? देखिए, मैं जहाँ तक जितना बिजनेस मैं समझता हूँ, मेरा अपना बैकग्राउंड रहा है क्रिएटिव से। एज एन राइटर आई स्टार्टेड माई